सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا عبداه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذ بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتعذر بي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا مالك ورحمة الله وتعزل لنكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزلت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأكبر انتظارك يا أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب رضائي قد عزلت لك فدخل علي تحت الكساء ثم عطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي قد عزلت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اطمئنوا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله فترفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم عذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة
الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عزمت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مليا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تعذر يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزمت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا المحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا المحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي وإذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खा यार था तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पर बीनाई भी जिसकी कम हो,
कमर में कम हो, आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खूने बेशीर से अंदाजा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी। आपके सामने जब आपके सामने जब शिमर ने मारा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर। मुझको जालिम ने कनीजी में, मुझको जालिम ने कनीजी में जो मांगा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बैन ये करते ही खामोश हुई वो अकबर। आज तो जाएंगे साथ अपने मुझे भी लेकर। आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम कीजिए वादा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिए जमाने सकीना को गशिए
हो गईया करे किसने क्या कह दिया सकीना को किसने क्या कह दिया सकीना को अब तमाशों की नारसन सकीना को नारसन सकीना को जिस्म है सद नब्ज साकित है क्या हुआ सकीना को क्या हुआ सकीना को हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गई सकीना को ले गई क्या पता सकीना को गरा की दुश्मन पुकारा खामोश और चुप हुई तो बेपिदरी ने कहा कि रो गैश जते से पुकार के पानी दो गया तेरे बाबा की प्यार गया तेरे बाबा की प्यार सोई जो आंसू पहुँच के चश्मे पुरा से हुसैन तेरे बड़े दिल में समा गया था जो शिमरे नहीं कदर सोने में कहाँ ये कहती थी रात है भैया छीता है गोहर शिमर बार गोहर आता है मिजाज बुलंद में ज़ैनब भी संभालो कलेजा धड़कता है सजादा जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती दुखते जो काशाहे खुदा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती सीने से कहती थी ने चचाना इमामे उमर वाले
बयान कल जगह में जाऊंगी इस घर से मेहमान रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ दरवाजे में वो कहती थी कि खुफले लगा है तो क्या हुआ जिंदा है बंगला जिंदा से कहती थी कभी वसीर गम हो जा एगा कले तेरा मेहमान गम मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी शोभदा बालों से कविता एक ताजा मौत होगी नबी के घराने में हमार डोगिया अब क्या लुटूंगी माल नहीं रहा अकबर नहीं रहा अली असगर नहीं रहा रहने को खैर खाना मिला घर नहीं रहा तो मेरे दौलत को सीध से जिंदा में खोगी रोना था जिसको अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैद से साकुन हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हो सकीना लेके बल्ला सबकी मर गई हैदर की बोली बानो की जुल्मा सकीना जान चल बसी मेरा सकीना चल बसी मेरा सकीना
बनाया मेरा सकीना जाया मेरा सकीना जाया जिंदाने शाम में तुमको आ गई क्या पता सकीना जाया क्या पता सकीना बानू से दम बदमी सकीना कथा बया कैसा मकान है कि हवा तक नहीं जा देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमान अम्मा सबों की जान खुदा ही बचाएगा सबको भी ऐसी तीरगी है तो बस हो चुकी है मैं जानती हूँ आज की शब शबे वफा सोते थे लेके सीने पार बाबा तमाम रात आदत मेरे बिगाड़ गुल हुई है तो घबरा के रोई अम्मा बला कभी अम्मा बला कभी सोई थी कोई दम के बंधा सोता देखा ये ख्वाब आए हैं सुल्तान नादा फैलाए हाथ टूटी उठी वो दिल पे गांठ के देखते कहती थी सब हरम यतीम की बातों बनो हदर रोते थे पांच बान भी मुड़ा डाक कर नागा गई यतीम को इस हाल की खबर फरियाद कर रही है जहाँ बिस्तरा रहे बाबा को देखने के लिए बेकार है बाबा को देखने के लिए बेकार है ले जाओ पर शाये बोला सियाह
हुआ जो दराए गुलों की बात फैली दिया है उसने शहनशाह अक्षिना हरम हुसैन की तस्लीम के लिए बैठी जमी पर लेके सकीना सरे उनके कलाम बशा के लाई मौत का बयान निकल गया फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात में मारे क्यों कहती हो मख्तल में चली आऊंगी बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार खुलता नहीं क्यों आपने बांधे है ये हथियार मैं आपको खो गए ना कभी पाऊंगी बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा शब होगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ सीने पे तो असवर को सुलाएंगे वहाँ अच्छा मैं वही खाक पे सो जाऊंगी बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा आती है बला से पे तो पहले मुझे मारो मर जाऊंगी बाबा ना सिधारो जाओगे जहां मैं भी वही जाऊंगी बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा
चली आऊंगी बाबा, आने दो अगर प्यास से बच आएगा बाबा, तुम जीते रहो पानी भी मिल जाएगा बाबा, मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाद बुलंद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें ज़ात वाजिब के लिए मखसूस, दुरूद व सलाम उन अनवार के लिए मखसूस कि जिसकी मोहब्बत में परवरदिगार आलम ने कायनात को खल्क़ फरमाया है। और खुदा का शुक्र है कि जिनकी मोहब्बत उसने वाजिब रखी है वो मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है और उनकी मोहब्बत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, एक शोरा आसार आया मुबारका की तिलावत मैंने की मुख्तसर से तमहीद के लिए। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने मुतअद्दिद मरतबा मफ़हूम इबादत को समझाया और मुख्तलिफ मकामात पर पैगाम दिया कि उसने क्यों खल्क़ किया है इंसानों को, तरीक़ा बताया रसूल के ज़रिए, पैगाम पहुँचाया रसूल के ज़रिए। और ख़ास तौर पे इस आया मुबारका में खिलकत का मकसद बताया कि इंसानों को क्यों खल्क़ किया गया, कि हम क्यों खल्क़ हुए। तो जिनों और इंसानों को मिलाकर खुदावंद आलम ने दोनों की खिलकत का मकसद ऐलान किया कि हमने खल्क़ ही नहीं किया जिनों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो इबादत करें। पता चला जिनों और इंसानों को अल्लाह ने खल्क़ किया है इबादत के लिए। अब चूँकि जिनों का ताल्लुक़ हमसे नहीं है, हमें उनके बारे में मारिफत हासिल करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। अब बेहतर यह है कि हम अपने नफ्स की मारिफत हासिल करें। जैसे मौला ने फरमाया मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि अपने नफ्स की मारिफत हासिल करो। देखिए, हम अक्सर ये होता है कि बात आ गई है तो अर्ज़ करता चलूँ कि अक्सर हम दर्द धरते हैं मोहब्बत का, अहले बैत की मोहब्बत का, अली की मोहब्बत का। और यकीनन ये बहुत बड़ा करम है खुदावंद आलम का। मगर सहवत या मदद ऐसा हो जाता है कि हम जिसकी मोहब्बत का दर्द करते हैं उसके अक़वाल और उसके बताए हुए तरीक़ों के खिलाफ अमल करने लग जाते हैं। हालांकि मोहब्बत का दावा है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, मगर कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम उनके कहने के खिलाफ अमल करते हैं।
उनके इरशाद के खिलाफ अमल करते हैं, यानी मशीयत के खिलाफ अमल करते हैं, तो हमें आगाह रहना चाहिए कि कहीं हमारे अमाल मर्जी इमाम के खिलाफ तो नहीं हो रहे हैं। अगर सहवन हो रहे हैं तो फौरन मुतवज्जह होकर तौबा कर लेनी चाहिए। आमदन हो रहा है तो फिर ये तय कर लेना चाहिए कि दावा बिल्कुल खोखला है। ये तय कर लेना चाहिए कि मोहब्बत सिर्फ जुबानी है, दिलों में दाखिल नहीं हुई है। इसकी दलील में देखो, ये हदीस आ गई जुबान पे तो अर्ज कर दो। इसकी दलील ये है कि इमाम ने फरमाया, देखिए खल्क क्यों हुआ, हम खल्क क्यों हुए? कुरान ने कहा इबादत के लिए। इबादत किसकी? अल्लाह की। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना शिर्क है। तो इबादत सिर्फ माबूद की। अब वो कैसे सकती है इबादत कि उसकी शान के वो नजर नहीं आ सकता, हमारी मजबूरी के हम देख नहीं सकते, फिर उसको इबादत हम करें कैसे? क्योंकि जिसकी भी इबादत करेंगे उसकी मारिफत होना जरूरी है। बगैर मारिफत इबादत इबादत नहीं, आदत हो जाती है। नमाजें पढ़ रहे हैं, आदतन पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, आदतन रख रहे हैं, आदत हो गई है नमाज पढ़ने की, तो आदत हो रही है, बस आदत के लिहाज से रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, रुको हो रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मगर इबादत मारिफत लाजिम और मलजूम है। माबूद की मारिफत के लिए माबूद की मारिफत जरूरी है। मारिफत एक रास्ता इमाम ने बताया कि मन आराफा नफ्सो, अपने नफ्स की मारिफत हासिल करो। इमाम कह रहे हैं, मैंने अभी जुमला जो कहा कि हम सहवन अमदन, कई मिसालें हैं, कई दाविये हैं कि कभी खिलाफ अमल करने लग जाते हैं। फितरत को हम गौर करें। इमाम कह रहे हैं कि अपने नफ्स की मारिफत हासिल करो ताकि रब की मारिफत हासिल हो, ताकि रब की मारिफत हासिल हो तो फिर इबादत इबादत में शुमार हो, अमाल इबादत में शुमार हो। ये तरीका इमाम बता रहे हैं। और हम हैं कि अपने नफ्स की मारिफत को छोड़कर बाकी सबके नफ्सों की मारिफत हासिल करते हैं। हमारा नजरिया पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया है कि हमें अपनी तरफ हम रागिब ही नहीं है, हम अपने नफ्स के बारे में मालूम करना ही नहीं चाह रहे हैं। हम तो बस अगले वाले के लिए मालूम करना चाहते हैं कि वो कैसा है, ये कैसा है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, बस इसमें लगे हुए हैं। तो अब ये सहवन या अमदन हो, ये कौले इमाम के खिलाफ अमल होगा। अब पूरी आम बिल्कुल अक्सरियत है इसमें, इस मामले में अगर आप और करेंगे तो 4 लोग बैठ जाए तो 4 लोग बैठेंगे तो 5वां जो नहीं है उसकी बात होगी, है ना, उसके बारे में बात होगी। भाई किसी पर्सनालिटी के बारे में बात होगी। भाई आजकल तो चीप पब्लिसिटी स्टंट्स चल रहे हैं, अजब मामला, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। हमारे कौम में बहुत हो गया है बाहर, अल्लाह महफूज रखे हमको। तो बस इनके बारे में सोशल मीडिया पे आ गया, चलिए पूरे मिलके तबसरे शुरू। उनके बारे में सोशल मीडिया पे आ गया, चलिए पूरे मिलके तबसरे शुरू। तो अब हो ये गया है कि हम इतने असीर हो गए हैं सोशल मीडिया के, हम इतने कैदी हो गए हैं सोशल मीडिया के कि इतने कैद हो गए हैं कि अपने बारे में मालूम करने का वक्त ही नहीं रहा हमारे पास। अपने नफ्स की मारिफत हासिल करने का वक्त ही नहीं रहा हमारे पास। इतना बिजी करके रख दिया है व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, इतना मजबूत करके रख दिया। ये वक्त है कि इन चीजों से हम बाहर निकले और अपने नफ्स की मारिफत हासिल करें ताकि रब की मारिफत हासिल हो, ताकि हमारी खिलकत के मकसद को हम अदा कर सके। क्या है खिलकत का मकसद? इबादत। तो इबादत आप देखें, अजीब तबके हैं लोगों के, इबादत इबादत। अब किसी से आप पूछें कि इबादत क्या है तो लोग कहेंगे नमाज। इबादत क्या है? लोग कहेंगे रोजा। अभी नमाज अजीम इबादत, नमाज कबूल तो सब कबूल ठीक है, नमाज मेराज है मोमिन की, मगर नमाज ही इबादत नहीं है। नमाज इबादत में है, रोजा इबादत में है, तमाम ये इबादतों में ये अरकान इबादत हैं। नमाज रुकने इबादत, रोजा रुकने इबादत। इबादत का मफहूम क्या है फिर? क्यों खल्क हुए? इबादत के लिए मफहूम क्या है? अगर सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, एक इंसान बताइए, अरे इंसान छोड़िए, आम इंसान छोड़िए, आपके मेरे बारे में छोड़िए, 1,24,000 में कोई एक नबी ऐसा बता दीजिए तो 24 घंटे नमाज पढ़ता हुआ मिला, तो 24 घंटे तस्बीह करता हुआ मिल रहा हो। यानी चलिए फितरत का तकाजा है, नींद, सोना जरूरी है, वो तो एक ही जात है, जिससे नींद आती है ना ऊँघ आती है।
बाकी सबके लिए तो नींद है। चलिए नींद का वक्फा हटाइए। अब जितना जागा हुआ है इंसान, उतने जागे हुए इंसान में कोई एक नबी बताइए जो मुसलसल जितना आंखें खुलने के आंखें बंद होने तक सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता मिला हो, सिर्फ तस्बीह पढ़ता मिला हो। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। आप मुझ में छोड़िए, अंबिया में नहीं मिलेगा। अंबिया में बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई नबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 18 घंटे 16 घंटे मुसलसल जितना भी जागा हुआ वक्फा हो, मुसलसल बैठ के इबादत में लगा हुआ। खल्क हुए इबादत के लिए, वो तो हादी है, उनको तो पूरा मुसलसल करना चाहिए इबादत, मुसलसल अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। नहीं, जुबान से 18 घंटे 16 घंटे अल्लाह अल्लाह करने का नाम इबादत नहीं है। मुसलसल कसरत से इबादतें, नमाजों को पढ़ के सजदे कर करके इबादतों का नाम देने का नाम इबादत नहीं है। इबादत का मफहूम यह है कि कानून इलाही, मशीयत इलाही, मर्जी इलाही के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने का नाम इबादत है। उसकी मर्जी के मुताबिक। अब उसका हुक्म है कि 5 नमाजें तुम पे वाजिब है, इबादतों में उसका हुक्म है तो पढ़ने का लाजिम हो गया, पढ़ना है, इबादत है, हुक्म के साथ, मारिफत के साथ। उसका हुक्म है महीने में रोजे रखे रमजान के, तो पूरा महीना वाजिब है, रोजे रखना इबादत है, ये अरकान इबादत है। अब अंबिया ने तिजारतें की, अंबिया ने बिजनेस किए, जिम्मेदारियां उठाई, अहलो अयाल की, ये क्या है फिर? ये भी इबादत में शामिल है, क्योंकि ये मशीयत है अल्लाह की, और मशीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। मशीयत के मुताबिक इबादत को जिंदगी गुजारने का नाम, जीने का नाम इबादत है। आप इबादतों को जिंदगी मत बनाइए, जिंदगी को इबादत बनाइए। मोहम्मद मासूमीन अलैहिस्सलाम, तालीमात मासूमीन अलैहिस्सलाम पे अमल करने की तौफीक़ात में इजाफा होने के लिए तहे दिल से बुलंदतर ये जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इबादत के मफ़हूम को सिर्फ नमाज तक, सिर्फ रोजे तक, सिर्फ खैरात तक अगर महदूद कर दिया, तो यही वो लोग हैं कि जिनके सामने अगर आप कहें जिक्र अली व इबादत, बिदअत नजर आएगा। अब इनसे कहें आलिम का चेहरा देखना इबादत, बिदअत नजर आएगा, शिर्क नजर आएगा। इनसे कहें माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, इनसे अगर आप कहें तो इन्हें बिदअत शिर्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि तो इन्होंने इबादत को सिर्फ नमाज समझा, इबादत को सिर्फ रोजा समझा। नहीं, मशीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। ये कौन सिखाएगा? रसूल। यानी रसूल जो कह दे उसको मानना इबादत है। रसूल कहे अली का चेहरा देखना इबादत है, तो फिर अली का चेहरा देखना इबादत है परवरदिगार की। रसूल कहे अली का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है, तो अली का जिक्र करना इबादत है अल्लाह। तो इबादत के मफहूम को पकड़े। एक हिकायत याद आ गई, अक्सर के मसाइब पे आ जाऊं। रूहुल हयात में एक हिकायत दर्ज है और बड़ी अजीब। मूसा जा रहे थे, हजरत मूसा एक जगह, तो सहरा के दरमियान उन्हें एक ज़ईफ नजर आया और मशहूर था, इबादत गुजार मशहूर था और बहुत ज्यादा एज थी उसकी और 100 ईयर्स 100 साल से इबादत कर रहा था। तो मूसा का दिल चाहा कि उससे मुलाकात करें, उस इबादत गुजार से मुलाकात करें। वो गए मुलाकात करने के लिए, और वो जो गारबाग के वगैरह होता है वहां पे बैठा था वो ज़ईफ। जैसे मूसा करीब गए, सलाम किया, जवाब में सलाम देके बिल्कुल चिड़चिड़ाहट में, कौन है? सवाल किया। मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ, कलीमुल्लाह हूँ, नबी हूँ अल्लाह का, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो कब से इबादत कर रहे हो? कहा मैं तो 100 साल से इबादत कर रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। कहा जाओ मूसा अपने रब से पूछ के आओ, परवरदिगार से पूछ के आओ कि इस 100 साल की इबादतों का बदला वो मुझे क्या दे रहा है।
मूसा ने कहा ठीक है। क्यूरियोसिटी उनकी भी बड़ी, मैं भी मालूम करना चाहता हूँ कि 100 ईयर्स की इबादत का अल्लाह क्या देना चाहता है। क्या मूसा मकाम पर और सवाल किया, परवरदिगार वो तेरा बंदा 100 साल से इबादत कर रहा, तू उसे क्या देने वाला? तो जवाब कुदरत आया कि मूसा कल सुबह जवाब देंगे हम अभी नहीं बताएंगे कि उसे क्या देंगे, हम कल सुबह बताएंगे कि उसको क्या मिलने वाला। ठीक है मेरे महबूब तेरी मर्जी। मूसा चले गए इंतजार में, जब कल सुबह होगी तो मूसा आएंगे, फिर सवाल करेंगे तो जाके उससे जवाब देंगे। इतने में ये हुआ कि वो जो बूढ़ा इबादत गुजार जो बैठा था, उसे प्यास लगी, पानी खत्म हो गया। करीब में एक नहर थी जो हमेशा जाके वहां से पानी पीता था। वो उठा पानी लाने के लिए और 100 साल से जा रहा है पानी पीने के लिए, मगर आज वो रास्ता भटक गया। पहली बार वो रास्ता भटक गया। अब भटक के जाने लगा तो ऐसे रास्ते पर जाने लगा कि जहां कहीं भी पानी का छाया तक नहीं। आखिर में चलते 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 प्यास के आलम में जमीन पर गिर गया। अब प्यास से दम तोड़ने वाला है, जहां कहीं का आलम। इतने में देखा कि कोई शख्स आया, करीब से कोई गुजर रहा। इसने फरियाद की, कहा तेरे पास पानी है, थोड़ा पिला दे, जान बच जाएगी। उसने कहा पानी तो है मगर देने का नहीं। कहा नहीं दे दे पानी, प्यास लगी है, जान बच जाएगी मेरी, वरना मैं मर जाऊंगा। कहा ठीक है मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, पानी दूंगा तुझे, मगर बदले में तुम मुझे क्या देगा? कहा मैं तो उधर नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। कहा नहीं कुछ तो देना पड़ेगा। बोल तेरे पास कोई कीमती शय है तो वो मुझे दे। उसने कहा मेरे पास सबसे कीमती शय तो मेरी इबादतें हैं जो मैं 100 साल से कर रहा हूँ। 100 साल से मैं परवरदिगार की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं 1 गिलास पानी दूंगा, 1 ग्लास ऑफ वाटर ओनली। मैं 1 गिलास पानी दूंगा और तुझे 100 साल की इबादत का सवाब मुझे देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा पशुपेश में आया। इसने सोचा चलो ठीक है भाई, जान बच जाएगी तो फिर और 100 साल अगर हयात मिले तो इबादत कर लेंगे। ठीक है मैं दे रहा हूँ। इसने अपने 100 साल की इबादतों का सवाब उसको दिया। उसने 1 गिलास पानी दिया, इसने पी लिया, जान बच गई, वापस आ गया। दूसरे दिन मूसा कलाम करने के लिए पहुंचे अल्लाह से। का परवरदिगार क्या दे रहा? उसके 100 साल की इबादतों का सवाब। अल्लाह का जवाब आया। मूसा हैरत में आ गए, फौरन गए। जैसे ही गए वो बैठा हुआ था, सलाम किया मूसा ने, उसने जवाब सलाम दिया। कहा उसने जैसे ही पूछा कि मूसा अपने परवरदिगार से बात करके आए, तो मूसा ने कहा हाँ पता चल गया मुझे मालूम हो गया है कि क्या हुआ तेरे साथ, मेरे परवरदिगार ने आगाह कर दिया। कहा फिर? कहा अल्लाह कह रहा है कि मैं तुझसे कहूं कि 100 साल की इबादतों का सवाब तो सिर्फ अल्लाह की 1000 नेमतों में से 1 गिलास पानी का था। सिर्फ 1 गिलास पानी के बदले में वो 100 साल की इबादतें तूने बेच दी। अब अल्लाह ये सवाल कर रहा है कि इतने सालों से जो रोज पानी पीता था उसका हिसाब दे, उसकी कीमत अदा कर। सलात पढ़े मोहम्मद 100 साल की इबादतें तो सिर्फ अल्लाह की 1 गिलास पानी के बदले में चली गई। अब जो रोज इतना पानी पीता था अल्लाह की नेमतों में से, उसकी कीमत अदा कर। ये फौरन कदमों पर गिर गया। कहा अब मैं समझ गया कि मफ़हूम इबादत क्या है। 100 साल के बाद तो पता चला रियाकारी और फख्र करना, गुरूर और तकब्बुर करने का नाम इबादत नहीं है। इबादत गुरूर और तकब्बुर नहीं सिखाती, इबादत इनकिसारी सिखाती है, इबादत आजिज़ी सिखाती है। और अजीज़ान गिरामी, मारिफत के बगैर इबादत हो नहीं सकती। मैं सिमट लूं गुफ्तगू। मासूम फरमाते हैं, काफी में मौजूद है रिवायत, कि हमारे बगैर, यानी हम अल्लाह की हुज्जत हैं, हमारे बगैर, हमारी मारिफत के बगैर कोई भी अल्लाह की मारिफत हासिल ही नहीं कर सकता। पता ये चला अगर वक्त के इमाम की, अपने अइम्मा की, नबी के 12 जानशीनों की मोहब्बत और मारिफत है तो उसी का सजदा इबादत में शुमार है, उसी के रोज़े इबादतों में शुमार है।
सलात पढ़े मोहम्मद व आलू। एक तफसील रिवायत है काफी में, मैं उसका आखिरी जुमला अर्ज करूंगा, अभी पूरी तफसील नहीं अर्ज करनी है मुझे, मौजूद तो बहुत तवील है, असातिज़ा बैठे हैं यहाँ, अहले इल्म बैठे हैं, जानते हैं कि इबादत का मफ़हूम ही कितना वसी है। उस रिवायत का आखिरी फिक्रा छठे इमाम से मंसूब, इमाम ने कहा मनसूस मिनल्लाह, इमाम के बगैर अगर कोई इबादतें कर रहा है तो उसके आमाल की मिसाल उस राह सी है, उस राह की तरह है जिसको उड़ाने के लिए एक तेज हवा का झोंका काफी है। अगर हमारी मोहब्बत, हमारी मारिफत के बगैर कोई अमाल कर रहा है तो उसके अमाल की मिसाल ऐसी है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के प्रति। आज़ीज़ान गिराम, चूंकि अल्लाह की हुज्जत दलील है परवरदिगार की, और इबादतों की कायनात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उसी की जिम्मेदारी है। भाई हमारी इबादतें क्या हजारों ख्यालात ज़हन में है, इसके सदका है कि उनके बताए हुए तरीके पर उनकी नकल कर लेते हैं तो अल्लाह कबूल कर लेता है। सदका है अहले बैत। क़द क़ामतिस सलात के असल अगर कोई मिस्दाक़ है तो वो तो है 14, और 14 में भी अगर कोई खास नजर आएगा क़द क़ामतिस सलात का मिस्दाक़ तो वो है हुसैन इब्न अली, जिसने सलात को कायम किया, जिसकी गवाही आप ज़ियारतों में देते हैं। ज़ियारत के तकरों में आप पता करते हैं, मैं गवाही दे रहा हूँ कि आपने सलात कायम की है। कायम करने वाले तो एक ही, कोई कराना, और उसमें हुसैन इब्न अली, और हुसैन के मकसद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इतने अजीम हैं अज़ीज़ान गिरामी कि उसमें हर फर्द का अपना एक अजीब किरदार है और अजीम किरदार। आप तसव्वुर करें कि अस्नाए राह में, शाम के रास्ते में आप हमेशा सुनते हैं कि जिस नेज़े पर अबा अब्दुल्लाह का सर बुलंद था, हुसैन का सर बुलंद था, वो नेज़ा जमीन में पैवस्त हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा। अशकिया ने पूरी कोशिश की, वो आगे नहीं बढ़ रहा। उन लोगों ने आकर सज्जाद की जंजीरों को हिलाया। और भी बात, इमाम तड़प गए, क्यों ढूंढा रहे हो? कहा कि बाबा का सर नहीं बढ़ रहा हूं। सवाल करें आप, इमाम आए, अपने बाबा के सर से मुखातिब हुए, बाबा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप? सर हुसैन से आवाज आई, मेरे डाल कैसे बढ़ जाऊं, मेरी सकीना गिर गई है। अल्लाह को अब आप सुन में एक ही बात पहुंचाऊंगा, रहमत तमाम इस बात की खुदा ने एहसास को सुना। सकीना गिर गई है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? आप सोचे तो सही, घोड़े की बुलंदी और होती है, ऊंट की बुलंदी और होती है। इतनी शमसे शहादाती जख्मों से, चूर रस्सियों से बंधी हुई, ऊंट की बुलंदी से सर के बल गिरी है जमीन। ये जिक्र सुना, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा लिया, दौड़ के गई शहज़ादी सकीना को लाने के लिए। अब सवाल ये है कि करबला से शाम तक कई बच्चे गिरे हैं, छोटी छोटी कब्रें बनती चली गई। कब्रें क्या, वो कत्ल होते चले गए, दफन होते चले गए, रेगिस्तानों की नजर होते चले गए। उन माओं का अल्लाह अकबर, उन माओं का क्या दिल होगा कि जो अपने बच्चों से चिमटे हुए बच्चे गोद से छूट गए, जो पलट के अपने बच्चों को देख भी ना सके, उन माओं का क्या दिल होगा। सिर्फ एक सवाल कायम करके जवाब देना था, उन बच्चों के लिए हुसैन का सर नहीं रुका, सकीना के लिए हुसैन का सर रुका। क्यों? अगर आप कहें मोहब्बत तो बेजा हो जाएगा जवाब। पहले हरम के घराने के बच्चे हैं,
हुसैन को उन बच्चों से भी बेइंतहा मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। फिर सकीना ही के लिए सर क्यों रुका? सरे हुसैन रुकना अज खुद एक मौजूदा है। हुसैन का सर रुकना अज खुद एक मौजूदा है। तो पता चला कि हुसैन का सर ये रुकने का, हुसैन का सर जो रुका है ये कुछ पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दे रहा है? कि हुसैन के घराने के अफराद जितने हैं और मकसद हुसैन के लिए, नुसरत हुसैन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ विलायत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ तौहीद के लिए, इस घराने के जितने अफराद हैं हर एक की अपनी एक अजीम जिम्मेदारी है। और वो जो बच्चे गिर के कत्ल होते गए हैं उनकी शहादतें रायगा नहीं गई हैं, उनकी शहादतें, उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं हुई हैं, बल्कि वो मकसद हुसैन के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। उनकी शहादतें, उनकी कुर्बानियां गवाह बन गई क़यामत तक के नबी ज़ादियों को कहां से असीर करके ले जाया गया। ये उन बच्चों की खबरें गवाही में आ गई हैं कि क़यामत तक कोई झुटला नहीं सकता कि नबी ज़ादियों को खैदी बना के ले जाया गया। राहों की गवाही बन गए हैं वो बच्चे। सकीना बीबी सरे हुसैन रोक के ये बता रहा है कि सकीना वो बीबी नहीं है कि जो रास्ते में गिर के मर जाए। सकीना की मंजिल असनाए राह नहीं है। सकीना को तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देना है। कहा कौन सा कारनामा अंजाम देना है? कहा सकीना को जिंदान तक जाना है। क्यों? अगर सकीना जिंदान तक नहीं गई तो कयामत तक पता कैसे चलेगा कि अहले हरम को कहाँ कैद करके रखा गया था? अरे ये तो खुदा बात है। यजीद ने तो सबको कैद खाने में रख और हमेशा के लिए रखने का इरादा कर लिया था ना। मगर फिर अगर सकीना की शहादत जिंदान में न होती तो सामने इनकलाब कैसे बरपा होता? इनकलाब बरपा न होता तो सज्जाद और ज़ैनब और अहले हरम को रिहाई कैसे मिलती? तो पता चला सरे हुसैन रुक के ये बता रहा है सकीना वो बच्ची नहीं है जो रास्ते में गिर के मर जाए, बल्कि सकीना को बड़ा कारनामा अंजाम देना है। जिंदान के अंधेरे से अहले हरम को यानी इस्लाम को रिहा करना। इसलिए हुसैन का सर रुक के बता रहा कि नहीं सकीना अभी नहीं मर सकती, सकीना अभी रास्ते में दम नहीं तोड़ सकती। सकीना को अभी और मजलूमियतें तय करनी है। सकीना को हुसैन का बड़ा मकसद अदा करना है। अल्लाह अकबर। यही तो सबक मर्सिये का भी आपने मिसरा सुना, बैठ सुनी ना। वो शोरा आप शोरा खुदा उनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने ये मर्सिये लिखे हैं। अजीज़ान गिरामी, आपने अभी बैत सुनी मर्सिये में, आप गौर करें मर्सिये की बात पर। पूरी तमहीद मेरी आपको एक बात में नजर आएगी। गुल हो सकीना लेके बला सबकी मर गई, हैदर की पोती मुश्किलें आसान कर गई। अब आप समझे ये किसकी मुश्किलें हैं जो सकीना आसान कर रही है? ये किसकी बलाएं हैं जो सकीना? पूरे जिंदान के अंधेरे में कोई बार बार नहीं पूछता था मदीना कब जाएंगे सिवाय सकीना के। हमेशा सकीना पूछती थी माँ के वतन कब जाएंगे। मगर पता चल गया सकीना को कि औलाद के जाने वाली नहीं। तमाम मुसीबतें अपने वजूद में सकीना ने मुंतकिल कर लिया। अल्लाहु अकबर। अहले हरम की रिहाई का सामान बन गई सकीना। मगर अरबाब अज़ा इस कर्ब के आलम में दुनिया से गुजरी। आप अंदाजा लगाए पूरे शहादतों की मजलिस में उलमा से खुतबा से मुसलसल एक जुमला आप सुन रहे हैं बीबी का। वक्त अखीर आखिरी सांसों में अपने भाई से कहा था ना। मगर उस फिक्र को सुनने से पहले आप ये भी तो समझे कि किस मंजिल पे आके वो फिक्र कहा होगा। और फिर अब समझे कि करबला से लेकर शाम तक सकीना ने खुद से कभी पानी का सवाल नहीं किया। मतलब ये कि जब से चचा के कटे हुए बाजू देखे, जब से चचा की छिदी हुई मश्क देखी, पानी का सवाल सकीना ने नहीं किया। ये और बात है कि यानी आज दिला कर दिखा के पानी बहाया है। सकीना ने नहीं पूछा। यही वजह है कि आखिरी सांस में कह रही है भैया सज्जाद आज से मेरी हड्डियां शुरू करी है। अगर मुमकिन हो कोई पलटी लगा मगर खुदा बात
मैदान में कब्र सज्जाद और बाकिर ने मिलकर बनाई। मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सहारा दे रहे हैं, सज्जाद ने छोटी सी कब्र बनाई। आप सुन रहे हैं, मुसलसल जिंदान के अंधेरों में दफन हुई, जिंदान की मेहमान बन गई। मगर जरा सोचे, क्या ऐसे होता था? क्या कोई कैदी मरने पर, मैं अक्सर मजलिसों में ये पैगाम पढ़ता रहा हूँ, क्या कोई कैदी मरने पर किसी कैदी का जनाजा जिंदान में दफन होता था, खैर खाने में दफनाया जाता था? नहीं होता था। ये दस्तूर नहीं था अरब का। दस्तूर तो ये था कि वहाँ करीब में एक अलग कब्रिस्तान बनाया जाता था, वो कैदियों के लिए मखसूस रहता था। और कोई कैदी मर जाता तो उसका जनाजा उस कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाता था। अब पता चला अब्बास की भतीजी की गुर्बत का मेयार क्या है। यानी सकीना वो कैदी है जिसका जनाजा भी जिंदान से रिहा न हो सका। सकीना वो कैदी है तो मर के भी रिहा न हो सकी। सकीना वो कैदी है जिसको कब्र भी मिली तो उसी जिंदा के में। अब कोई रवायत से पूछे कि कैसे बेटी को अपनी आंखों से जिंदा के अंधेरे में रखने देगा। कोई सच्चा से पूछे कि कैसे जंजीरों में लकड़े हुए अपनी बहन। इबादत को कबूल फरमा। कोई हम न दे सिवाय आले मोहम्मद के। कायनात में जहाँ जहाँ मोमिन बसते हैं सबके जान मानी बताबरू ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। बारिल्लाह जिक्र के सबब जिक्र के सदक़े हम सबको बीबी के रौज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा। बानिया मजलिस आज़रानी मजलिस के दिली मक़ासिद को बना। बारिल्लाह इस वक्त जो भी अदील हिजरों में ज़िला दवाखानों में एडमिट हैं, बिलखुसूस ज़ाकिरे एंटरवेट मोहतरमा समीरा रज़वी साहिबा के फर्जंद जो इस वक्त सलमान इस वक्त अलील हैं और कोमा में हैं, दुबई में एडमिट हैं, उनको और जितने मोमिनीन इस वक्त अलील हैं, बिलखुसूस तक़ीरुल्लाह नबी साहब, मदर अहमदी साहब और जो इस वक्त अलील हैं, खुदा आपके जिक्र के साथ सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको हज़रत के नासिरों में शुमार मातम में बास का परचम बंधा है नन्हा गला रतन में, सकीना रो रो बुला रही है। बंधा है नन्हा गला सकीना रो रो बुला रही है। बंधा है नन्हा गला रतन में, सकीना रो रो बुला रही है। बंधा है नन्हा गला
सकीना रो रो बुला रही है, बंदा है नन्हा गला रसन में, सकीना रो रो बुला रही है। कहाँ हो आप जल्द आओ, जल्द आओ, तमाचे जालिम के खा रही है, नहीं कोई बीवियों का शहीद सब हो चुके दिलावर, नहीं कोई बीवियों का नासिर, शहीद सब हो चुके दिलावर। सकीना पास की भतीजी, सकीना पास की भतीजी, समाज जालिम से खा रही है, बंदा है नन्हा गला रसन में, सकीना रो रो बुला रही है। तुझको पता नहीं क्या सकीना बीबी कहूँ मैं ताता, शिम्र तुझको पता नहीं था, सकीना बीबी कहूँ मैं साका। मशीन दुखिया के गोशवारे, मशीन दुखिया के गोशवारे, चलाए दरिया से आ रही है, बंदा है नन्हा गला रसन में, सकीना रो रो बुला रही है। वो शाम का संग कैद खाना, ना रोशनी है ना बुलाना, वो शाम का रंग कैद खाना, ना रोशनी है ना बुताना। सितमगरों के सितम उठा के, सितमगरों के सितम उठा के, यतीम दुनिया से जा रही है, बंदा है नन्हा गला
वापस ना आओगे। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। बोले हुसैन अबू से के मंजूर है खुदा। हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा। बचपन के साथी तुमको विदा करने हैं हुसैन। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। बोले हुसैन अबू से के मंजूर है खुदा। हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा। के सीना दे पाओगे। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। लाशा जवान बेटे का तनवा उठाओगे। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। जो अंबिया न कर सके क्या कर दिखाओगे। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। बोले हुसैन अबू से के मंजूर है खुदा। हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा, हुसैन और खुदा। बचाना है फिर तुम्हें। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। अपना बचाना है फिर तुम्हें। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। शुक्र खुदा जुबान में लाना है फिर तुम्हें। वादा करो हुसैन, वादा करो हुसैन। बोले हुसैन
ये दीन बच गया हुसैन खुदा हुसैन खुदा हुसैन खुदा हुसैन खुदा हुसैन खुदा हुसैन खुदा बेकस का जमाने से मिटेगा न कभी गम शबीर का है काम झुकाए थे ये हर न झुकेगा हर मुल्क में लहराएगा बात का परचम दरियाए नजात
है शेर यज़दानी, शेर याली आवाज अलम गरम के शोध मैदानी है शुरे दरियाए नजफ शेर यज़दानी, आवाज अलम गरम के शोध मैदानी है शुरे दरियाए नजफ शेर यज़दानी, असगर दिल दरम के शोध कुर्बानी है शुरे दरियाए नजफ शेर यज़दानी, असगर शीर करम के शोध बैकानी है शुरे दरियाए नजफ शेर यज़दानी, आई दूरे दरियाए नजफ शेर यज़दानी दरियाए नजफ शेर यज़दानी, आई शेर यज़दानी है शेर यज़दानी, शेर यज़दानी है शेर यज़दानी, शबे शबे दानी है शेर यज़दानी, यूसुफ कन याली हुसैनन व हुसैनन व हुसैना हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, हुसैनन व हुसैनन व हुसैना हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, अला नूर लक़द ज़िबल बुकाई हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, यतीमाइन शरबतुम माअन फस्कुरूनी हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, तुम बेगरीब नौ शहीद फंदबूनी हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, वाना सित्तुल्लज़ी मुग़ैर जुर्मिन क़तलूनी हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, हुसैनन व हुसैनन व हुसैना हुसैनन व हुसैनन व हुसैना, हुसैन 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 हुसैन, हुसैन 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 हुसैन, शहीद करबला हुसैन 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 हुसैन, गरीब नैनवा हुसैन 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 हुसैन, याली वासकीना वावैला वासकीना वावैला, वासकीना वावैला वासकीना वावैला, मज़लूमा वावैला वासकीना वावैला, गुरबता वावैला वासकीना वावैला, मिस्कीना वावैला वासकीना वावैला, बादशाना वावैला वासकीना वावैला, बादशाना वावैला वासकीना वावैला, वासकीना वावैला वासकीना वावैला, वासकीना वावैला वासकीना वावैला, वावैला वावैला, वावैला वावैला, वावैला वावैला, हाय 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 हाय, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन अस्सलामु अलैकुम अलल अरवाह अल्लती हलत बिनाइक व अनाक़त बिरली अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ी व बक़ियल लैल व नहार व ला जअलुल्लाह और बिरलती मिन्नी लिसियार सब मिलके हुसैन वाला हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन सय्यदी व मौलाय अल-फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मुमिनीन क़ासिम इब्न अल-हसन व मुस्लिम इब्न अक़ील व हानी इब्न उर्वा व हबीब इब्न मज़ाहिर व शहीद रियाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैका या मुनीन अज़्ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा अस्सुल्तान वल हसन अली इब्न मूसा अय्युहा रज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैका या साहिबल असर वल ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान
अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरआन अजल्लाहु ताला फरज अल्लाह ताला वकर मिन आवानत व अंसारत व शियरत जमीआन व रहमतुल्लाह व बरकातहू Muhammad Ali Muhammad